करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा धेनुकामदुघासुरेश्वरगजो ब्रह्मादिदेवाङ्गना अश्वः सप्तमुखो विषं हरिधनु शङ्खो मृतं चाम्बुदे रत्नानीति चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। तनाव और चिंता ज्यादातर लोगों के लिए कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। प्रायः तनाव स्ट्रेस का कारण काम का बोझ, समय की कमी, अनुचित खान-पान, खराब जीवन शैली एवं पारिवारिक समस्याएं होती हैं। नमस्कार, आरोग्य प्रोग्राम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे स्ट्रेस पर, तनाव पर, और इस पर ज्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर दीपक। Namaste. Today I am going to explain you regarding the stress. Stress is a most common problem which we can see in this current scenario. Almost all people, they are having different kind of stress. So what is the main cause of this stress? So we can categorize it into three parts. One is financial, second one is work related, and the third one is family related. So some people, they are working for long hours, especially in some IT sector or some offices. They are working more than 10 to 12 hours. When they are working like this, they are getting some sort of stress from the higher officers. They are getting some kind of stress, and also some people, they are having stress due to the financial problems. So the financial problem they are, or the financial crisis they're getting in their entire life, and some is due to the family oriented or family related. It's because of the relationship, broken relationship, or some people, they are getting some kind of problem with the family itself, family members, they are crooning them. So this kind of issues are causing the most common stress in our society. So what are the signs and symptoms or the major health issues which is caused by the stress? So the first most common cause is anxiety and depression. Then there is sleeplessness, obesity, or the weight gaining. Then certain kind of skin issues like eczema, psoriasis kind of thing. Then pain and aches all over the joints. So these are the main diseases which can cause by stress. Now we can go and check what are the signs and symptoms. So the signs and symptoms of stress are like memory impairment, that means lack of memory, then lack of appetite, that means the person is not able to take proper diet, then there is sleeplessness, then some people we can see they are taking more food. They use food to recover their anxiety or the stress. So those people are getting more obese. Then we can see some sexual disorders, some skin issues. All those things are the signs and symptoms. And sometimes there is some pain and aches. They are telling digestive disorders like gastric irritations, regurgitation, etc. are some of the signs and symptoms of this stress. The signs and symptoms of psoriasis include lack of appetite, memory problems, that means reduced memory functioning, so they are forgetting the things very fast. Then some depression, sleeplessness, then lack of ability, then problems in the sexual life, then behavioral, like they almost change their normal character. Then digestive disorders like indigestion, lack of appetite, all those things, regurgitation, etc. are some of the major signs and symptoms of stress. So today we are going to demonstrate certain Ayurvedic treatments which treat the stress. Nari Sweden.
नारी स्वीडन। स्वीडन के माध्यम से पसीने का निष्कासन करना सर्वाधिक स्वस्थ और प्रभावी तरीका है। सर्दियों में पसीना निकलना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वस्थ रहने के लिए खाना, पीना और सांस लेना। शरीर की सफाई के अलावा विष उन्मूलन की प्रक्रिया त्वचा को स्वस्थ, साफ और सुंदर बनाए रखने में अत्यंत उपयोगी है। सर्दियों में पसीना निकालने के लिए हमें कसरत करने की जरूरत होती है, लेकिन स्वीडन के माध्यम से पसीने का निष्कासन करना सर्वाधिक स्वस्थ और प्रभावी तरीका है। स्वीडन के अनेक लाभ हैं। ये निषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, तनाव दूर करता है, त्वचा को चमकदार एवं वजन को कम करने में सहायक है। ये जोड़ों को स्वस्थ करता है व रक्त परिसंचरण बढ़ाता है। आयुर्वेद के अनुसार स्वीडन के कई तरीके होते हैं। जी हाँ, नारी स्वीडन। इसके लिए हर्बल काढ़े के भाप का उपयोग किया जाता है। इसके लिए विशेष नारी स्वीडन यंत्र का प्रयोग किया जाता है। भाप शरीर में संचित अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है और वात के शीत गुणों को बेअसर करके मांसपेशियों व जोड़ों के दर्द को कम करता है। शरीर के अंगों को उतनी ही भाप दें जितने से वे जले नहीं। आयुर्वेद में स्वेदन क्रिया पंचकर्म चिकित्सा का ही एक पूर्व कर्म है और इसे आयुर्वेद चिकित्सक की देख रेख में ही करना उचित है। ये चिकित्सा एंटेराइटिस समस्याओं जैसे कि सूजन, दर्द, लालिमा आदि के इलाज में बहुत उपयोगी है। उपचार की अवधि व्यक्ति की स्थिति के आधार पर 15 से 30 मिनट तक होती है। लीप नाम। लिपनाम खास तौर से जोड़ों में होने वाली वो समस्या है जो दर्द के लिए जिम्मेदार होती है। आयुर्वेद के अनुसार जोड़ों में दर्द इसलिए होता है क्योंकि जोड़ों में टॉक्सिन यानी जहरीले पदार्थ जमा हो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार एंटेराइटिस से बचने के लिए लिपनाम बहुत उपयोगी है। एंटेराइटिस की समस्याओं को रोकने के लिए लिपनाम एक आयुर्वेदिक तरीका है। इसमें मेडिकेटेड हर्बल पेस्ट का उपयोग करते हैं। लिपनाम एडिमा, जलन और दर्द को कम करने के लिए उपयोगी है। ये दर्द, गर्म पैक को राहत देने और चमक, कोल्ड पैक को भी बाहर करने में मदद करता है। मूल रूप से लिपनाम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे विशेष रूप से कुछ बीमारियों जैसे एंटेराइटिस, त्वचा रोग आदि रोकने में मदद देती है।
औषधीय हर्बल पेस्ट की तैयारी घी और हर्बल काढ़े के साथ प्रभावित हिस्से पर लागू होती है और मलमल के कपड़े के साथ उस हिस्से को लपेटती है। पेस्ट को सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद साफ पानी से धोया जाता है। लीपनाम उपचार की अवधि 7 दिनों के लिए है। लीपनाम का उपयोग हमेशा व्यक्ति की शारीरिक स्थिति के आधार पर निर्भर होता है। धान्य अम्लाधारा। धान्य अम्लाधारा एक आयुर्वेद चिकित्सा है। ये इन्फ्लेशन के इलाज के लिए प्रयोग में लाया जाता है और इससे दर्द कम होता है। इसमें शरीर पर या घाव पर तरल पदार्थ की हल्की धारा लगातार उड़ेली जाती है। इस चिकित्सा पद्धति के बहुत से फायदे हैं। इससे मोटापा कम होता है, इन्फ्लेशन कम होता है, मसल्स में उत्पन्न दर्द कम होता है और ये कुछ किस्म की पैरालिसिस और रिमेटिज्म यानी गठिया के इलाज में भी प्रयोग में लाया जाता है। धान्य अम्लाधारा एक खास फर्मेंटेड औषधीय पदार्थ है। इसमें व्यक्ति की स्थिति के मद्देनजर औषधीय तेल के प्रयोग का फैसला लिया जाता है और तब गुनगुना तेल की धारा धीरे धीरे शरीर पर गिराई जाती है। समस्त इलाज के दौरान धान्य अम्ला उष्ण ही रहता है। उन मरीजों के लिए ये चिकित्सा बहुत ही कारगर रहती है जिसको कफ वात संबंधी परेशानी रहती है। एक सेशन 45 से 50 मिनट का होता है, लेकिन ये आमतौर पर व्यक्ति की कंडीशन पर निर्भर करता है। डॉक्टर की सलाह पर धान्य अम्लाधारा समस्त शरीर या शरीर के अंग पर गिराई जाती है। पूरी ट्रीटमेंट 7 से 14 दिनों की होती है।
तक्रधारा। तक्रधारा या बटरमिल्क धारा एक पारंपरिक आयुर्वेद चिकित्सा है। इसमें तक्र की एक धारा लक्षित शरीर के अंग पर डाला जाता है। तक्रधारा सोरियासिस, उच्च रक्तचाप, अनिद्रा की चिकित्सा में उपयोगी है। तक्र यानी मक्खन दूध। इस प्रकार तक्रधारा वो प्रक्रिया है जिसमें औषधीय मक्खन दूध एक सतत प्रवाह में माथे पर डाला जाता है। मक्खन का दूध गुनगुना होने तक गर्म किया जाता है। इस गुनगुने मक्खन के दूध को व्यक्ति के माथे के ऊपर रखे गए बर्तन में डाला जाता है। औषधीय मक्खन दूध माथे से बालों तक बहता है। तनाव, मधुमेह यानी डायबिटीज या अन्य कई रोगों के कारण ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन अधिक होने लगता है। शरीर क्लम्प यानी टायर्डनेस, थकान यानी फैटीग लगती है। सर में दर्द, पूरे या आधे सर में दर्द के साथ नींद नहीं आती। अनिद्रा, इंसोम्निया कम आती है। स्मृति नाश यानी लॉस ऑफ मेमोरी होता है या भूल जाने की समस्या, अल्जाइमर होने लगती है। व्यक्ति इन सब कारणों से डिप्रेशन में आने लगता है। इसका प्रभाव सारे शरीर पर होता है। पीड़ित के बाल असमय सफेद या बाल झड़ने लगते हैं। तनाव से सोरियासिस, डैंड्रफ, पैरालिसिस, डायबिटिक न्यूरोपैथी आदि अनेक रोग होते हैं। ये सब तक्र या अन्य शिरोधारा से तनाव मुक्ति होते ही ठीक होने लगते हैं। ये उपचार व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करता है, तब इसके मद्देनजर पूर्ण शरीर पर ये उपचार किया जा सकता है। उपचार की अवधि व्यक्तिगत स्थिति के आधार पर 30 से 45 मिनट तक चलती है। आज के आरोग्य प्रोग्राम में हमने देखा कि स्ट्रेस से जुड़ी, तनाव से जुड़ी मसाज कैसे होते हैं, आयुर्वेद मसाज कैसे होते हैं। तो एक अगले प्रोग्राम में आरोग्य में हम फिर मिलेंगे एक दूसरे मसाज को लेकर। हम आशा करते हैं कि आप इन उपचारों से लाभ उठाएंगे। हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा धेनुकामदुघासुरेश्वरगजो रम्भादिदेवाङ्गन अश्वः सप्तमुखो विषं हरिधनु शङ्खोऽमृतं चाम्बुधे रत्नानीति चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्।